Till now we have completed 3 exercises of this chapter simple equation, and today we will be starting our exercise 4.4. Okay, we have learned how we can convert equations into statement. ठीक है, इक्वेशन दी हुई है उसको स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट स्टेटमेंट इनटू इक्वेशंस. We have also learned how we can solve simple equations by 2 different methods. One was transpose method and another one was by balancing the method. ठीक है, हम बैलेंस करते हैं, सेम स्टेप्स दोनों तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन. Now today we will be starting exercise 4.4, which is completely based on word problems. For solving such questions we should have a very good कंट्रोल ओवर द वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन को सेट करना. सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. इस क्वेश्चन में क्या है, ऐड 4. ऐड करना है मतलब प्लस करना है. क्या प्लस करना है, 4 to 8 times a number. So in this case, first of all we have to assume that number to any variable. So let the number be x. Okay, now according to question, this you have learnt in first exercise also, कि हम जब भी इक्वेशन फ्रेम करते हैं तो हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बना रहे हैं वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमने जो भी वेरिएबल है उसको क्या मान लिया है, x मान लिया है. ऐड 4 प्लस करना है, मतलब ये रहा +4. ऐड 4 किस में 4 को हमें प्लस करना है, टू 8 टाइम्स अ नंबर. तो दिस इज द नंबर 8 टाइम्स अ नंबर में हमने 4 ऐड कर दिया. यू गेट 60. Now this is the equation which we can solve simply by using transposing method. This 4 x के साथ 8 भी है 4 भी है, दोनों को हटाना है. First of all we have to remove this 4. So 60 minus 4, 8x is equal to 56. x is equal to 56 by 8. So x is equal to 7. ठीक है, therefore at the end you can write the number is 7. ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे. दिस इज ए पार्ट. सिमिलरली यू कैन लुक एट द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है, 1/5. 1/5 का मतलब है 1/5. ठीक है, 1/5 ऑफ अ नंबर. अगेन लेट द नंबर बी, वी कैन टेक एनी डिफरेंट वेरिएबल. दिस टाइम आई एम टेकिंग इट एज y. Okay, let the number be y, and they are saying 1/5 of a number. According to question, 1/5 of means multiply. So 1/5 of y and 1/5 of a number minus 4 gives 3. Now when I will solve this, how it will be solved? This minus 4 will go to right side, become +4. So y upon 5 is equal to 7. Y is equal to 7 into 5 and y is equal to 35. So once we have framed the equation, it becomes very easy to solve the question. ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन सही से फ्रेम हो गई है तो हमें इसको सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन थी. अब हम वैसे ही सी पार्ट देखेंगे. सी पार्ट में क्या लिखा है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर. अगर मैं कोई 3/4 ऑफ अ नंबर लूँ, ठीक है, यहाँ पे हम नंबर को x ही रहने देते हैं. इफ़ यू वांट वी कैन चेंज द वेरिएबल. दिस टाइम आई एम टेकिंग इट एज a. ओके, व्हाट दे आर सेइंग, if I take 3/4 of a number, so according to question 3/4 of means multiply करके यही आ जाएगा.
if I take 3/4 of a number and add 3 to it, और उसमें मैं 3 को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, they are saying I get 21, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा. Now we can easily solve it. 3a by 4, 21 minus 3, this will be 18. So 3a is equal to 18 into 4. ठीक है, a is equal to 18 4 हो जाएगा हमारा 72. 72 by 3. On solving I will get a is equal to 24. ठीक है, therefore the number is 24. Similarly, this was C part. Now we can look at the D part. थोड़ा इसी में हम चेंज कर लेंगे. क्वेश्चन में क्या है, when I subtracted 11 from twice a number. जब मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट किया twice a number से, so this time I am taking the number to be m. Okay, now when I subtracted 11 from minus 11, किसमें सब्ट्रैक्ट किया है, from twice a number. This is twice the number, means 2 times, and the result was 15 आ रहा था. हम इसको easily solve कर सकते हैं. 15 plus 11, 2m is equal to 26. m is equal to 26 by 2, so m is equal to 13. Okay, very simple way we can solve these questions. ठीक है, बस आपकी इक्वेशन सही बननी चाहिए. अगर इक्वेशन सही बनेगी तो पूरा का पूरा आंसर हमारा सही होगा. Now after D part we will look at E part. यहाँ पे मैं इसको E कर देती हूँ. वेरिएबल वी कैन टेक एनी वेरिएबल, A से लेके Z तक जो भी वेरिएबल प्यारा लगे हम वो ले सकते हैं. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट हमारे ई पार्ट में क्या है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50. मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो सिंपल कांस्टेंट हो, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है वो हमेशा पहले आएगा. तो यहाँ क्या लिखा है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स. थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या हो जाएगा, 3 into नंबर ऑफ नोटबुक्स. तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी n. ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक्स को क्या मान लिया मैंने, n मान लिया. अब मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब 3n को सब्ट्रैक्ट किया है किसमें से, फ्रॉम 50. फ्रॉम के बाद 50 है तो वो पहले आना चाहिए. फ्रॉम 50 ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8. उसको पता लगा रिजल्ट कितना आ रहा है, 38 आ रहा है. अब देखिए अगेन दिस इज द वेरिएबल, 3 भी हटाना है 50 भी हटाना है. सबसे पहले सपोज करिए मैं 50 को हटा रही हूँ, -3n एज इट इज़ रहेगा, उस नंबर के आगे वाला साइन नहीं जाता है. ये 50 एक पॉजिटिव है, इट विल बिकम -50. सो -3n इज इक्वल टू 8 minus 50 minus 42. ठीक है, this minus and this minus, now they can cancel each other. Now n is equal to 42 by 3. n is equal to 40. So there are 14 notebooks and all. Notebooks था तो मैंने n वेरिएबल चूज कर लिया. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था. बस वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करना हमें अच्छे से आना चाहिए. लिखा था थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब 3 into फ्रॉम 50. तो फ्रॉम के बाद जो भी है वो पहले आएगा. अगर ये छोटी छोटी गलतियों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा. ठीक है, ई के बाद आप एफ पार्ट देखिए. एफ पार्ट के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इब्न हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर. इब्न हाल कोई बच्चा होगा, ही थिंक्स ऑफ अ नंबर. इफ शी एड्स 19 to it, उन्होंने जो भी नंबर सोचा, लेट द नंबर बी, दिस टाइम आई एम टेकिंग नंबर टू बी p. आई कैन टेक एनी वेरिएबल, जो भी मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, मैंने p ले लिया.
तो मैंने मान लिया कि इब्न हाल ने ये नंबर सोचा है, ठीक है, P। नाउ इफ शी एड्स 19 टू इट, P में वो 19 को क्या करती हैं, प्लस करती हैं, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और इस पूरे सम को 5 से डिवाइड करती हैं, देन शी विल गेट 8। What she is getting? She is getting 8. Now let's solve it. P के साथ 19 भी है, 5 भी है। सबसे पहले 5 को हटाएंगे, 8 into 5. So P plus 19 is equal to 40. P is equal to 40 minus 19. P is equal to 21. एक बार ये इक्वेशन सही बन गई, then 99% गारंटी है कि हमारा सॉल्यूशन सही है। लेकिन अगर इक्वेशन ही गलत बन गई है तो बहुत कम चांसेस है कि आपका आंसर सही आएगा। जी पार्ट अब आप लोग देखेंगे। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर ने भी कोई नंबर सोचा, सो लेट द नंबर, अभी हम लोग लेते हैं नंबर Q, लेट द नंबर बी Q। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Anwar thinks of a number, ठीक है, if he takes away 7 from 5/2 of a number, 5/2 of a number का मतलब है 5/2 of मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाऊं साइन या नहीं लगाऊं, बोथ आर सेम, so this is 5/2 of a number। now what they are saying, if he takes away, takes away मतलब निकाल लेना, खत्म कर देना, कम कर देना, ठीक है, क्या टेक्स अवे 7 फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद ये तो ये पहले आएगा, इसमें से वो 7 अगर माइनस कर रहे हैं, द रिजल्ट इज 23। नाउ इट्स इजी टू सॉल्व, 23 प्लस 7, 5/2Q इज इक्वल टू 30, 5Q इज इक्वल टू 30 into 2, Q इज इक्वल टू 60/5। Okay, so it gives Q is equal to 12. So the boy has, Anwar has think of the number 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए, जी पार्ट तक, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। These were the questions which were the basic, सबसे सिंपल क्वेश्चंस थे। सेकंड में भी वर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड में भी वर्ड प्रॉब्लम है। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के आपको उसको डिकोड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास। आप ना पूरी प्रॉब्लम को एक स्टोरी की तरह समझिए, जैसे वो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आप अपने टीचर को इमेजिन कर लीजिए, ओके। द टीचर tells the class that the highest marks, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं, obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। किसके बारे में बात हो रही है, आप ये देखिए सेकंड का ए पार्ट, हाईएस्ट मार्क्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स के बारे में क्या बताया है इन्होंने, इट इज ट्वाइस मतलब 2 into ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, ओके। नाउ दे आर सेइंग द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और ये हाईएस्ट स्कोर कितना है, दिस इज 87। हाईएस्ट मार्क्स के बारे में बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, हमने L मान लिया है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, लेट द लोवेस्ट स्कोर बी L, ठीक है। हमने लोवेस्ट स्कोर को क्या माना है, L। सो 12 इज इक्वल टू 87 माइनस 7, 12 इज इक्वल टू 80, L इज इक्वल टू 80/2, सो L इज इक्वल टू 40, ओके। तो ये बहुत सिंपल था। Therefore, lowest score is 40। तो इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आपको हाईएस्ट मार्क्स के बारे में बता रखा था, और उसके बारे में दो चीज़ें दे रखी हैं।
एक तो हाईएस्ट मार्क्स है कितना और दूसरा उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द लोवेस्ट मार्क्स. So again this was simple question. After A we can look at the B part. B part में क्या है? In an isosceles triangle. इस टाइप का क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं. Isosceles triangle का मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं. So in an isosceles triangle the base angles are equal. मैंने बेस एंगल बताया था ना, ये दोनों क्या होते हैं आपके बेस एंगल. ठीक है, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स हैं. The base angles are equal. The vertex angle is 40 degree. This is 40 degree. ये सारी चीज़ें अपने डायग्राम में शो कर दी हैं. ठीक है, vertex angle 40 degree, ये base angle है. और then what are the base angles of the triangle? Let the base angle be x. ठीक है, let the base angles be x. ठीक है, बेस एंगल्स को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं. तो इसमें अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो आपको इन तीनों एंगल को प्लस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. x प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब इसमें देखिए 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू ये जो प्लस 40 है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 40. अच्छा, ये 180 डिग्री कैसे आया है, इसके लिए आपको रीज़न लिखना पड़ेगा. ठीक है, हाउ दिस इज कम, यू कैन राइट सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, इसलिए ये चीज़ आपकी आई है. देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री. x इज इक्वल टू 140/2. सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर आ गया है. ओके, तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो बेस एंगल इक्वल होते हैं. उनकी लोकेशन क्या होती है, उनको हमने x मान लिया है. वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री था और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी. तभी आप तीनों एंगल्स को जोड़कर कितना करेंगे, हम 180 डिग्री करेंगे. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस यू कैन लुक एट द सी पार्ट. सी पार्ट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल. जो भी राहुल का स्कोर है, सपोज करो राहुल का स्कोर अगर 10 है तो सचिन का 20 होगा. तो हमें राहुल का स्कोर कुछ मानना पड़ेगा. लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी s. क्या मान लिया मैंने वेरिएबल s. We are independent to choose any variable. ठीक है, so let the score of Rahul be s. Now according to question हमें ये बता रखा है सचिन का जो स्कोर होगा, सचिन स्कोर इज 2 into s. ठीक है, 2 और s को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. Now together their sum fell. टुगेदर मतलब दोनों का साथ में लेंगे, मतलब s और 2s को प्लस करेंगे. सो टुगेदर देयर सम फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. सेंचुरी में 100 रन्स, डबल सेंचुरी में 200 रन्स. और इन्होंने क्या लिखा है कि अगर इन दोनों के स्कोर को मिला दिया जाए, टुगेदर देयर स्कोर फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. टू शॉर्ट करना मतलब 2 कम पड़ गया. डबल सेंचुरी हो जाती लेकिन उसमें आपका 2 कम पड़ गया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 198. s इज इक्वल टू 198/3. s इज इक्वल टू 3 6 18. तो ये 66 आया है. तो राहुल का स्कोर कितना है, 66 रन्स. दे वांट अस टू नो हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर. हर एक का कितना स्कोर हुआ. देयरफॉर
स्कोर ऑफ राहुल इज इक्वल टू 66 रन्स, ठीक है, एंड स्कोर ऑफ सचिन 2 into 66 that is 132 runs. So here your question gets over. ठीक है, तो आपको बस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उन्हें अच्छे से समझना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व. ओके, नाउ सिमिलरली यू विल लुक एट थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की भी ऐसी पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व. थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप देखिए. फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? इरफान सेज, सेम टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है. वी हैव डिस्कस सच वर्ड प्रॉब्लम्स इन 4.1. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर, मतलब +7, किससे 7 ज़्यादा है, देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज. परमीत के पास मान लिया हमने x मार्बल है. इरफान हैज 37 मार्बल्स. ये भी इरफान के मार्बल्स की काउंटिंग है और ये भी. At the beginning you can write let the marbles Parmeet has be x. ठीक है, परमीत के मार्बल्स की मैंने काउंटिंग क्या मान ली है, x. Then I can solve this equation. This is according to question only. 5x is equal to 37 minus 7. 5x is equal to 30. x is equal to 30 by 5. x is equal to 6. ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 6 आ रही है. 6 मार्बल्स परमीत हैज. हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव. तो जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, उसका आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर अगर आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी मार्बल्स डज इरफान हैज, तो ये है इरफान के मार्बल्स की काउंटिंग. ठीक है, तो आप 5x 37 दिया हुआ है वैसे. Therefore, Parmeet has 6 marbles. Okay, this is the question. Now we will look at the second part. Second part की equation भी आप बना सकते हैं. Third का first part हो गया है. Second का word problem आप बना चुके हो first exercise में. लक्ष्मी's father is 49 years old. इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको करने में. लक्ष्मी के पापा 49 years के हैं. डायरेक्ट बता रखी है एज. फिर क्या बता रखा है, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Let Lakshmi's age be x. Okay, so this is my according to question. आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको पूरी इंडिपेंडेंस है. Now find out the age of Lakshmi. 40. In the first exercise, for these questions we have only framed the equations, but in this exercise we have solved it also. ठीक है, 3x is equal to 45, x is equal to 45 by 3, so x is equal to 15. Okay, so 15 एज किसकी है, लक्ष्मी की. यही हमसे कुछ क्वेश्चन में पूछा है, what is Lakshmi's age. Therefore Lakshmi's age is 15 years. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ये दोनों इक्वेशन हम कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में. थर्ड में क्या है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम. दिस इज थर्ड पार्ट. सुंदरग्राम इज अ प्लेस. वहाँ के जो लोग हैं, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन विलेज गार्डन. They have planted some trees. Okay, some of the trees were fruit trees. The number of कुछ fruit वाले plant थे, कुछ non fruit plants थे. ठीक है, fruit trees थे, कुछ non fruit trees थे. So the number of non fruit trees का नंबर क्या बता रहे हैं, were 2 more than. 2 more मतलब +2. किससे 2 ज़्यादा, 3 times the number of fruit trees. So let the number of fruit trees be x. Now this is according to question. ठीक है, the
नंबर ऑफ, ये नॉन फ्रूट ट्रीज के बारे में, फ्रूट ट्रीज तो एक्स है, नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77? बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, पर पूछा वही गया है कि ये नॉन फ्रूट ट्रीज का एक रिलेशन है, एक उनका डायरेक्ट नंबर दिया है, और हमसे पूछा फ्रूट ट्रीज है, मीन्स दे वांट अस टू कैलकुलेट x. 3x is equal to 75, x is equal to 75 by 3, so x is equal to 25. ठीक है, लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, therefore number of fruit trees is 25. So here your question is complete. अब जो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वो एक रिडल टाइप का है, ठीक है, पहेली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको खेलते खेलते सॉल्व करिए. देखिए हम रिडल को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मस्त स्टार बनाया है सो दैट वी कैन हैव अ थॉट. ठीक है, बिल्कुल दिमाग की से लाइट जलनी चाहिए इसमें. आई एम अ नंबर, ओके, आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, मीन्स वी हैव टू टेल इट्स वैल्यू, दैट्स ऑल्सो ओके. टेक मी 7 times over, 7 times, times means multiply. So ये बोल रहे हैं कि मुझे 7 times over कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ऐड अ 50, और मुझ में 50 प्लस भी कर दो. ठीक है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ऐसा करते ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ट्रिपल सेंचुरी पे पहुँच जाएंगे. यू स्टिल नीड 40, यहाँ ट्विस्ट है, इन्होंने बोला ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने के लिए अभी भी आपको 40 चाहिए, मतलब इसमें अभी भी 40 कम है. देखो लास्ट में तो ठीक है, 7 times ओवर किया, ऐड 50 कर दिया, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, मतलब इसमें अभी भी 40 कम है. तो आपकी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 7x प्लस 50 इज इक्वल टू 360. जब आप इसको सॉल्व करोगे 50 माइनस हो जाएगा तो 310 आएगा. 310 को फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 7 4s are 28. ठीक है, 50 माइनस करके 310 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4s are 28 एंड देन 3 और 0, ये आपका डेसिमल में आएगा. आप चाहो तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो. ठीक है, x is equal to 310 by 7. Okay. Okay, wait children, one mistake is there. माइनस करने पे ये 260 आएगा, जब आप 50 माइनस करेंगे 210 आएगा, then the number will be 30. Okay, so the number is 30. ठीक है, so in this way you have solved the riddle. Okay, now in this way our fourth exercise is complete. So you can see all the questions, you can try solving extra simple equations, frame करिए उनको, फिर आप उनको solve करिए. ठीक है, definitely you will enjoy this concept. So thank you so much children. Now with new concepts we will meet in our next video.